حضرت علامہ مولانا محمد توقیر رضا صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے نورانی و انسانی خطاب سے، نغمات سے ہم سامعین کے دلوں کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا استقبال نعرے تکبیر، نعرے رسالت سے کیا جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، نہ چل کر کہیے سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور پھر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، پھر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں میں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں میں وہ ہے تلوا تیرا۔ آئیے ان کا استقبال نعرے تکبیر، نعرے رسالت سے کیا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم مولانا توقیر رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ معزز سامعین کرام، خواتین، پردہ نشین، عزت دار مائیں بہنیں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ایک تو مسلسل ویسے بھی آواز اس وقت نہیں نکل پا رہی ہے، روزانہ ملاز شریف ہو رہی ہے، اور یہ غوث اعظم کا کرم ہم سنیوں پر غوث اعظم کا کرم ہے کہ انہی کا لنگر کھا کھا کر انہی کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، انہی کا لنگر کھا کھا کے انہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ غوث اعظم کا کرم ہے ماشاءاللہ۔ حالانکہ میری کوئی دعوت نہیں تھی، مگر یہ ہمارے حضرت علامہ مولانا بشیر الدین صاحب قبلہ کرم فرما، میں نماز مغرب پڑھ کے جیسے نکلا، کہا چلو ہم چلتے ہیں ملاز شریف کے لیے۔ اور جہاں پر سرکار غوث اعظم کا ذکر ہو، یار پرندے اپنے پروں کو اڑانا بھول جائیں، جانور اپنی زبان ہلانا بھول جائیں، یہ غوث اعظم کی محفل ایسی ہوا کرتی تھی۔ وہاں اگر مجھے کوئی دھوکے سے بھی کہتا کہ غوث اعظم کی محفلیں چلو تو میں سر کے بل آتا، مگر حضرت یہ اتنے کرم نواز ہیں کہ اپنی گاڑی سے لے کے آئے، حالانکہ کوئی دعوت نہیں تھی، مگر غوث اعظم کی محفل میں شرکت قبول تھی، غوث اعظم کی محفل میں شرکت قبول تھی۔ اور آپ لوگوں کے چہرے دیکھنا، کہ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں کے چہرے کھلتے ہوئے دیکھنا، یہ رب کو بہت پسند ہے، بے شک، سبحان اللہ، رب کو بہت پسند ہے ماشاءاللہ۔ یوں تو حضرت کا بارہا خطاب ہوتا ہے، اور ہمارے عالم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے یہاں ملاز شریف میں پڑھ کے گیا ماشاءاللہ۔ بڑے دل نواز لوگ ہیں آپ لوگ، بڑی محبتوں کے ساتھ میں آپ حضرات سنتے ہیں۔ حقیقت بات ہے، اگر یہ مائک کا ڈیکوریشن صحیح ہوتا، جنریٹر تھوڑی دور ہوتا،
हेलो भैया, हेलो माइक वाले साहब, एक माइक चालू कर दो, कोई भी चालू कर दो, बाकी बंद कर दो। एक ही सब लोग सुन लेंगे। एक लोग सुनना है। हेलो 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 हेलो, ये चालू कर दो, ये वाली बस ऐसे रहने दो। जैसा भी है, ये मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा महाराजा, उनके दादे अमजद का जिक्र हो रहा है नहीं? और जब उनका जिक्र होता है तो उनके दादे अमजद का जिक्र भी होना चाहिए। शायर कहता है कि बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। यार हम सब हुसैनी हैं, हम सब इमाम हुसैन के नामे पाक पर अपनी जानों को कुर्बान करने वाले हैं। और क्यों ना कुर्बान करने वाले हों कि मैदान करबला में मेरा हुसैन अकेला तने तनहा 22,000 के मुकाबले में डटा रहा, और ऐसा डटा कि आज भी मजहब इस्लाम हरा भरा नजर आता है। शायर कहता है कि बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। ये खामोश ना रहो, बोलते रहो, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। और जब अल्लाह ने आप पर करम फरमाया है, आप गौस की महफिल में आ गए हो, हुसैन की महफिल में आ ही गए हो, तो यहाँ से जब उठो तो इतनी नेकियां इकट्ठा कर लो। अगर सुबह आंख ना खुली तो इन्हीं नेकियों की बदौलत अल्लाह ताला बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। दौड़ के बोल दो, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। और ये गौस की महफिल है, गौस की महफिल। अभी हजरत का एक और प्रोग्राम दिन प्रोग्राम में है, उसमें भी इनको शिरकत करनी है। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा ना बढ़ाऊंगा, बल्कि थोड़ी देर के लिए आप हजरत बगौर समात फरमा लें, और ऐसा समात फरमाएं कि लगना चाहिए कि हम सब गौस की महफिल में बैठे हुए हैं, है नहीं? हकीकत बात है, हकीकत बात है, गौस की महफिल में बैठे हुए हैं। और गौसे आजम ने हम पर करम फरमाया है, गौसे आजम ने हम पर करम फरमाया कि गौसे आजम का लंगर भी खाया है। सुभान अल्लाह। और ये मुकद्दर की बात है कि लंगर हमारे साथ है, लंगर हमारे साथ, मुर्गा हमारे साथ, बकरा हमारे साथ। वो उनका मुकद्दर है कि कौवा उनके साथ में है, ये उनका मुकद्दर है कि कौवा उनके साथ में है। हमारा मुकद्दर है कि हम यहाँ भी रहेंगे। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। असमत भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे असमत भाई को सलामत रखे। उन्होंने, हकीकत बात है कि किसी के देने से कोई चीज़ कम नहीं पड़ती, मगर ये देने वाले की नीयत देखी जाती है। ये हमारे लिए सर का ताज है, क्योंकि ये ऐसे वैसे पैसे नहीं है, बल्कि सरकार गौसे आजम की महफिल में मिले हुए हैं। गौसे आजम का भी एक वाक्य बताऊंगा। गौसे आजम के दर का कुत्ता, सरकार गौसे आजम के दर का कुत्ता इतना पावर रखता है कि शेर को चीड़ फाड़ डालता है। ये तो गारंटी है, मेरे गौस की महफिल में मिली है। हकीकत बात है, ये सर का ताज है। सारे लोग बोल दो या रसूलल्लाह। वो बेमिसाल है, ये असद भाई की तरफ से मैं पेश कर रहा हूँ। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। आलम भाई एक मतलब आप बोलो सुभान अल्लाह। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। और कटे हैं बाजू मगर हौसले निढाल नहीं। वो बेमिसाल है, उसकी कोई, आगे बढ़ आओ मेरे भाई, आगे बढ़ आओ और मजा आ जाएगा। हकीकत बात है, ये गौस की महफिल है, ये गौस की महफिल है। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, कब्र की
आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं थोड़ा सुकून ले पाती है माँ। और प्यार के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। मैं शेर पेश कर रहा था। कटे हैं बाजू मगर हौसले निढाल नहीं, हुसैन वाले, हुसैन वाले, हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में उतना माल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में उतना माल नहीं। हर वली ख्वाब पाए गौसना, मजहब हनफी दारम मसलके अहमद रजा, खुदा भी हुर्मदे अरवाह अंबिया मददे, पये मोहम्मदो महमूदो मुस्तफ़ा मददे, बराए पंजतने पाक चारियारे नबी व हमा अरवाह औलिया मददे। मेरे इमाम फरमाते हैं बकारी खवे शेरानम अगसनी या रसूल अल्लाह, बोल दो सुबहान अल्लाह। बकारी खवे शेरानम अगसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगसनी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन, मरीजे दर्द इस्यानम अगसनी या रसूल अल्लाह। क़िबला रुए तो या रसूल, काबा कुए तो या रसूल, दर्द मंदम बेकरारम अजगीना बाज़ इस्या शर्म शारम या रसूल। बुलंद आवाज़ से सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए खुशा किस्मत, सरकार गौसे आजम के हवाले से 2-3 शेर, उसके बाद में नज्म पेश किए जाएंगे, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए एक वाक़या बयान होगा, उसके बाद में हजरत का खिताब होगा और हजरत भी तशरीफ लाए हैं इंशाल्लाह, इनको भी सुनना है। सारे लोग बोल दो या रसूल अल्लाह, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। अगर ये आप जुमला अदा करेंगे तो गौसे आजम आप पर करम फरमाएंगे, और गौसे आजम ने करम फरमा दिया तो इंशाल्लाह गौसे आजम का रोजा भी आप देख लेंगे। सुबहान अल्लाह। ए खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, बोलो सुबहान अल्लाह। ए खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाह जिलानी मिला। ए खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाह जिलानी मिला। और क्या मेरी औकात में आता जो बगदाद को, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। और खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है। हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत सबसे अफजल है। जिस उम्मत में हम और आप हैं, मेरे हुजूर की उम्मत सबसे अफजल है। कुरान कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, है नहीं, तुम्हें बेहतरीन उम्मत हो। शायर कहता है, शायर कहता है ए खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाह जिलानी मिला। और खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है। और पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला, पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला, पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला। और मेरी मिट्टी किस तरह बर्बाद हो सकती है जब बाग तैबा की हवा और बगदाद का पानी मिला, बाग तैबा की हवा और बगदाद का पानी मिला। शायर कहता ए मेरे दोस्त, आलम भाई आपकी तवज्जो के समातों के हवाले, शायर कहता ए मेरे दोस्त तू मुझे इतना दे दे, चोरी करने का तू मुझको हुनर दे दे। शेर समझिएगा, शेर, क्योंकि आपने 12 सुना होगा। और हजरत के खिताब में मैंने अक्सर ये वाकया सुना है कि सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक चोर आया, चोर चोरी करने की नीयत से सरकार गौसे आजम ने उसको चुरा लिया, अब्दाल बना के उसको मुकर्रर कर दिया, है नहीं। ये वाकया आपने हजरत से सुना होगा, सुना है? हर लोग बोल दो या रसूलुल्लाह। इसी वाकये की तरफ ये शायर, जो शायर होते हैं बड़े डूब डूब के शेर निकाल लेते हैं, बड़े डूब डूब के शेर निकाल लेते हैं। जैसे आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाके एक से एक भैंस ले आते हैं, है नहीं, वो लोग हम नहीं खरीद पाएंगे जो आप लोग खरीद लेंगे। शायर लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से डूब के शेर निकाल लिया करते हैं। शायर कहता है ए मेरे दोस्त तू मुझे इतना दे दे, चोरी करने का तू मुझको हुनर दे दे। और उसकी तमन्ना क्या है, चोर की तमन्ना क्या है? ए मेरे दोस्त तू मुझको इतना दे दे, चोरी करने का तू मुझको हुनर दे दे, अगर चोरी करूं तो फौरन पकड़ जाऊं। तमन्ना कर रहा है
अगर चोरी करूं तो फौरन पकड़ जाऊं, मगर मुझे किसी महबूब सुबहानी का घर दे दे, मगर मुझे किसी महबूब सुबहानी का घर दे दे। चोर की भी तमन्ना यार, मैं अगर पकड़ा जाऊं तो वो दर सरकार गौसे आजम का हो, घर सरकार गौसे आजम का हो, घर पीराने पीर का हो, घर रोशन जमीर का हो, घर दस्तगीर का हो। ऐसी जगह पे जब पकड़ा जाऊंगा तो मेरी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी, दुनिया भी बनती नजर आएगी और आखिरत भी बनती नजर आएगी। सरकारी आला हजरत फरमाते हैं, वह क्या मर्तबा गौ से बाला तेरा। वह जो लफ्ज होता है ये लफ्ज इजाफिया है। वह क्या मर्तबा गौ से बाला तेरा, मतलब एक तो ऊंचा, शायर आला हजरत की निगाह कहाँ गई। वह क्या मर्तबा गौ से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के, यानी एक ऊंचा होता है फिर उससे ऊंचे, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वह क्या मर्तबा गौ से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। यानी जो ऊंचे थे उनसे ऊंचे, और उनसे ऊंचे उनका होता है सर, और सर का मुकाम क्या होगा, सर का मुकाम क्या होगा। या गौस आप जहां उनका सर का मुकाम है वहां तो आपके कदम है, जहां उनका सर है, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। ये हजरत जाम है, ये बस यही वाकया, उसके बाद मैं 2 शेर पढ़ूंगा, हजरत का खिताब होगा इंशाअल्लाह। हजरत जाम ये बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं। ये सरकार गौसे आजम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी, हम आपके यहाँ मेहमान होना चाहते हैं, हम आपके यहाँ मेहमान होना चाहते हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, आपका वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है, तशरीफ लाइए। कहा ऐसे नहीं आऊंगा, मैं शेर की सवारी करता हूँ, मैं शेर की सवारी करता हूँ। और जब आप मेरे पेट के लिए इंतजाम करेंगे तो वहाँ मेरे शेर के लिए भी इंतजाम करेंगे, वहाँ मेरे शेर के लिए भी इंतजाम करेंगे। यानी मेरे पेट भरने के लिए आप मुर्गा बकरा इस्तेमाल करवाएंगे मुझे, तो मेरे शेर के लिए भी एक गाय होनी चाहिए, एक बड़ा जानवर होना चाहिए। गौसे आजम ने फरमाया कबूल है, आ जाओ। अब वहां पर दिखाना ये था कि अब्दुल कादिर तो टूटी हुई चटाई पे बैठा करते हैं और मैं इतना बड़ा अल्लाह का वली हूँ कि शेर की सवारी करता हूँ। बस थोड़ा हल्का सा ये घमंड आया, मैं शेर से चलता हूँ, शेर से चलता हूँ। हजरत जाम शेर से चलते थे। सरकार गौसे आजम की बारगाह में जब अरीज़ा पेश किया, सरकार गौसे आजम ने उनकी दावत कबूल फरमा ली, दावत कबूल फरमा ली। सरकार गौसे आजम की बारगाह में हजरत जाम पहुंचे, मुरीदों को हुक्म दिया गौसे आजम ने, जाओ एक गाय का इंतजाम करो। गाय का इंतजाम करने के बाद एक जगह बांध दी गई। सरकार हजरत जाम आए, हजरत जाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। कहा हुजूर इंतजाम हो गया, कहा इंतजाम सारा हो गया है, फला जगह तुम्हारे शेर की खुराक बंधी हुई है, वहाँ अपने शेर को बांध दीजिएगा, ये जब इसका जो जी चाहेगा ये इस्तेमाल कर लेगा, खा लेगा। मगर सरकार गौसे आजम का दर का कुत्ता जो सरकार गौसे आजम के टुकड़ों पे पलता था, सरकार गौसे आजम की टूटी हुई हड्डी को खाता था, सरकार गौसे आजम के लुकमे को खाता था, दुबला पतला कुत्ता था, दुबला पतला कुत्ता, उसके जिस्म पे मांस नहीं था। किसी ने सवाल किया, कुत्ते तो सरकार गौसे आजम की बारगाह में पड़ा रहता है, भूखा पड़ा रहता है, तो तेरे पास कोई और दर नहीं है, तेरे पास कोई और दर नहीं है, तो यहाँ पड़ा रहता है। सरकार गौसे आजम करम की नजर ही नहीं करते। कुत्ता जवाब देता है, ये वलियों के शहंशाह हैं, ये वलियों के शहंशाह हैं, एक ना एक दिन तो नजर पड़ेगी, एक ना एक दिन तो नजर पड़ेगी, और जिस दिन नजर पड़ गई तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। दुबला पतला कुत्ता, दुबला पतला कुत्ता सरकार गौसे आजम की बारगाह में बैठा रहता था, बैठा रहता था। हजरत जाम आए, गौसे आजम की आपस में मुलाकात हुई, हजरत जाम से सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला से मुलाकात होती है, दुआ सलाम होता है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अपने दस्तरखान पे बैठे हुए हैं। हजरत जाम ने हुक्म दिया उनके मुरीद को, जाओ मेरे शेर का इंतजाम करके आओ। कहा हुजूर गाय बंधी हुई है, आपका शेर जब चाहेगा तो निवाला बना लेगा। जैसे ही शेर लपका,
शेर गाय की तरफ लपका, गौसे आजम ने उस कुत्ते पर नजर डाल दी। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने उस कुत्ते पे नजर डाल दी। गौसे आजम ने जब कुत्ते पे नजर डाली, उसका तेवर बदल गया। दुबला पतला कुत्ता है, उसका तेवर बदल गया। अनकरीब था कि शेर गाय तक पहुंचता, वो कुत्ता झपट के शेर को इधर का उधर चितले पितले कर दिया, चीर फाड़ के बराबर कर दिया। आला हजरत इसी तरह फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये आला हजरत हैं, ये आला हजरत हैं। और एक वाकया कि सरकार गौसे आजम जब बीमार पड़े, और इसी के मुंसलिक ये जो शेर मैंने पढ़ी है, इसी से मुंसलिक एक है हजरत नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वो हैं, मैं आपको बताऊं बस थोड़ी देर के लिए, आप समझ फरमाएं। और ये बहुत अच्छी बातें हैं कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बीमार पड़े तो उनके तबीबों ने कहा कि हुजूर फलां जगह एक बहुत बड़ा नब्बाज है, यानी नब्ज दे के मर्ज बता दिया करता है, हुजूर अगर आप इरशाद फरमाए तो आपको वहां दिखा दूं। कहा नहीं, पहले उससे पूछ के आओ मेरी मर्ज ठीक कर पाएगा नहीं ठीक कर पाएगा। तो मरीज तबीब के पास पहुंचे, सरकार गौसे आजम के मुरीद उस तबीब के पास पहुंचे। सुनिएगा, जब सरकार गौसे आजम के मुरीद तबीब के पास यानी हकीम के पास पहुंचते हैं तो हकीम कहता है कि तुम्हें गौसे आजम को लाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पीर को आने की जरूरत नहीं, उनका पेशाब ले आओ। पेशाब से एक जांच होती है ना, आप पेशाब ले आओ, हम जांच करके बता देंगे कि कौन सी बीमारी है। सरकार गौसे आजम का जब पेशाब वो ले गया मुरीद, उस हकीम को तबीब को दिया, तो वो बैठा हुआ था, पेशाब दे के खड़ा हो गया, पेशाब दे के खड़ा हो गया। बहुत बड़ा वो हकीम था, तबीब था, पूरे जिले में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मशहूर था, इतना बड़ा तबीब था। यार गौसे आजम की भी जांच होगी तो ऐसे ऐसे डॉक्टर पास थोड़ी होगी, है कि नहीं? वो भी तो वलियों के सुल्तान हैं। जब पहुंचा मुरीद रह के पेशाब को चेक किया तो वो तबीब खड़ा हो गया, हकीम खड़ा हो गया और खड़े होकर कहता है, ये तेरे पीर का पेशाब है? कहा ये मेरे पीर का पेशाब है। कहा जब ये इस पेशाब में इतनी ताकत इतनी कुव्वत है तो तेरे पीर में कितनी ताकत होगी? तेरे पीर कहाँ है? कहा मेरे पीर फला जगह है। कहा मुझे ले चल, मुझे ले चल। वो हकीम तबीब जाके सरकार गौसे आजम के हाथों पे मुरीद हो जाता है। यहूदी था, मुसलमान हो जाता है। अब जब देखा कि ये मुसलमान हो गया तो पूरा कुंबा का कुंबा, उसके ईमान लाने से पूरा इलाका मुसलमान हो गया। उसी में एक हैं नजमुद्दीन कुबरा। वो सरकार गौसे आजम की बारगाह में जब पहुंचे, अपने बच्चे को लेके पहुंचे तो सरकार गौसे आजम की बारगाह में उनको दे दिया। कहा हुजूर ये हमारा बच्चा है, इसका नाम रख दीजिए और इसको अपनी गोद में ले लीजिए। सरकार गौसे आजम उस बच्चे को लेते हैं और कहते हैं, नजमुद्दीन ये तेरा बच्चा वक्त का बादशाह होगा, ये तेरा बच्चा वक्त का बादशाह होगा। आज आप देख रहे हैं फिलिस्तीन का हाल क्या है, फिलिस्तीन गाजा का हाल क्या है। आप जो मोबाइल चलाने वाले हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि मासूम बच्चे, उनकी लाशें ढूंढे नहीं मिल रही हैं। मैंने एक न्यूज में देखा कि डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर जो लोगों का इलाज करता था, जब पूरी गाड़ियों की गाड़ियां आई, लाशें गिराई गई, जब वो ऑपरेशन करने लगा, उन लाशों का देखने लगा तो देखा कि उसका नौजवान हट्टा कट्टा बच्चा भी इसमें मरा पड़ा हुआ। ये हालात हैं फिलिस्तीन के। गौसे आजम फरमाते हैं, नजमुद्दीन ये तेरा बेटा वक्त का बादशाह होगा। तारीख गवाह है कि बैतुल मुकद्दस को फतेह करने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी उसी नजमुद्दीन का बेटा है। इनका जब आखिरी वक्त आया, सलाहुद्दीन अय्यूबी का जब आखिरी वक्त आया तो इनका सफेद सालार आया। कहा हुजूर मजा नहीं आ रहा है, हमने इतनी जंगें लड़ी, घोड़ों पे बैठ के पूरे शहर के शहर फतेह कर लिए, बैतुल मुकद्दस पे 22 हमले किए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, तब जाके वो बैतुल मुकद्दस फतेह हुआ। कहा हुजूर मजा नहीं आ रहा है, आज यहाँ बिस्तरे अदालत पर पड़े हुए हैं,
کاش وہ منظر ہوتا کہ گھوڑے دوڑ رہے ہوتے، تلواریں چل رہی ہوتی، آپ کی گردن تن سے جدا ہوتی، رب کی بارگاہ میں آپ کی قربانی قبول ہو جایا کرتی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جلال میں جاتے ہیں، کہتے ہیں وزیر تو چاہتا ہے کہ میری گردن تلوار سے کٹے؟ ارے یہ دیکھ، کالر ہٹایا، اپنا کالر ہٹایا تو دیکھا کہ سرکار غوث اعظم کے پنجوں کے نشان بنے ہوئے ہیں، سرکار غوث اعظم کے پنجوں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ کہا یہ میری گردن پر پیران پیر کے پنجوں کے نشان ہیں، قیامت تک اگر میں زندہ رہوں تو مجھے کوئی تلوار کاٹ نہیں سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا